Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. As today is the last lecture of chapter number 1, that is lecture number 3, in which we shall discuss about how the manager job is changing, as well as we will also discuss about what is the organization is. In the previous lecture we have discussed about the skills of the manager. However, any questions and answers are welcomed through WhatsApp as well as in comment section. Moreover, at the end of this chapter, next lecture will be the important questions and MCQs of first chapter, inshallah. Let us start how the manager's job is changing. As the increasing importance of customers, as we know that nowadays organizations are customer oriented, whereas if we talk about the previous decade when organizations were product oriented, whatever production in the organization being made, we have to sell. The manager does not customer oriented, but nowadays every organization is customer oriented. Customers are focused. The reason that organization exists, if there is no customer, there will be no existence of organization. So managing customers relationship is the responsibility of all the managers and employees. This is what the manager's job is changing. We have to focus the customer. We have to manage the customer. It is the responsibility of the manager. Next is the consistent high quality customer service is essential for survival. If we have to focus the customer, then we have to provide the high quality service to the customers. Without providing the services, high quality services, survival is impossible. Second one is the innovation. Doing things differently, exploring new territory and taking risks. Managers should encourage employees to be aware of and act on opportunities for innovation. You have to provide the opportunities. It is the responsibility of the manager. It has changed the job of the manager that he should provide the opportunities to the employees to innovate, to generate new ideas, so that employees to be aware of the opportunities for innovation. They can avail the opportunities of innovation. This is how changes impacting the manager's job. There are changes. The first change is the change of technology, that is digitization due to the IT. Impact of changes, number one is the shifting of organizational boundaries. हम देख रहे हैं कि due to technology, due to IT, there is a lot of change in the organization boundary. जैसा कि without any building, without any office, we can perform the job at home. It is not compulsory to have a particular office or building to attend the office, but we can perform anywhere our job without organization boundaries. Virtual workplace, this is also the same thing. Virtual workplace means there is no fixed building, no workplace fixed for the job. One can perform at home. Nowadays, practical examples are nowadays, जिस तरह आजकल कोविड-19 में मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस ने बेशुमार जॉब्स ऐसी हैं जो कि वर्क एट होम में परफॉर्म हो रही हैं. मोर मोबाइल वर्कफोर्स, मोबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स. फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई जो है 9 to 4 परफॉर्म नहीं कर सकता, ऑफिस नहीं पहुंच सकता, ही कैन हैव द फ्लेक्सिबल टाइमिंग दैट इज 10 to 5. Empowered employees, it is also changing impact. Number 2, increased security threats. जब हम बात करते हैं IT की तो डाटा सिक्योरिटी के हवाले से थ्रेट्स भी साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं. रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क बढ़ रहा है. वर्क लाइफ पर्सनल लाइफ बैलेंस, ये भी एक इशू खड़ा हो रहा है.
पर्सनल लाइफ और ऑफिस की जॉब के दरमियान इम्बैलेंसिंग क्रिएट हो रही है। अगर एक आदमी सारा दिन ऑफिस में बैठा हुआ हर वक्त ईमेल पे ऑनलाइन रहता है, दैट मीन उसकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है। रीस्ट्रक्चर्ड वर्क प्लेस, डिस्क्रिमिनेशन कंसर्न्स, ग्लोबलाइजेशन कंसर्न्स एंड द एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम्स, ये भी उसी तरह ही चेंजेस में इम्पैक्ट डाल रहे हैं। नेक्स्ट है जी इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजरियल एथिक्स। ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट नज़र आ रहा है कि मैनेजरियल एथिक्स जो है, जैसे रीडिफाइंड वैल्यूज़ हो गई हैं किसी भी कंपनी में, अब वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो गई हैं, रीडिफाइंड हो गई हैं। जैसे ऑनेस्टी विद द एम्प्लॉयज़, ऑनेस्टी विद द कस्टमर, रीबिल्डिंग ट्रस्ट और इंक्रीज्ड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी भी उसी लिहाज से बढ़ती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। मैनेजर की जॉब में चेंजेस आ रही हैं। फिर है जी इंक्रीज्ड कंपेटिटिवनेस। जब कस्टमर सर्विस की हम बात करते हैं तो देयर आर कंपेटिटर्स इन द मार्केट आल्सो, तो कस्टमर सर्विसेज में भी कंपेटिटर की वजह से चेंजेस आ रही हैं, इनोवेशन में चेंजेस आ रही हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रही है, और नो डाउट इससे एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पे भी इम्पैक्ट जो है वो नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर to achieve a particular goal is called an organization. Similarly, an organization की definition, a deliberate arrangement of people to accomplish some specific purpose. किसी पर्पस के लिए, किसी खास ऑब्जेक्टिव्स के लिए लोगों का इकट्ठा होकर कोई परफॉर्म करना इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी कुछ ऑर्गेनाइजेशन की। देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर कॉमन इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हैव अ डिस्टिंक्ट पर्पस, अपना पर्टिकुलर गोल होता है। कंपोज्ड ऑफ पीपल, मस्ट बी सम पीपल आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड हैव अ डेलिब्रेट स्ट्रक्चर। देयर मस्ट बी हायरार्की in any organization, either centralized, decentralized, flat hierarchy, there must be some deliberate structure. Characteristics of organization वही तीनों नज़र आ रही हैं। डिस्टिंक्ट पर्पस है, कोई ख़ास ऑब्जेक्टिव के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। डेलिब्रेट स्ट्रक्चर है, कोई ना कोई हायरार्की है, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन बना हुआ है, और पीपल जो है वो मस्ट है। तीनों ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह जब चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन और कंटेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमें प्रीवियस एरा में नज़र आती हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट 20th सेंचुरी, तो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन 20 years बिफोर देयर मस्ट बी द स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, देयर विल बी नो चेंज। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक पर्पज़ के लिए बनी है तो वो वही काम कर रही है, उसको और दूसरी तरफ कोई सरोकार नहीं। तो अब क्या है, कंटेम्परेरी में डायनामिक है, चेंजेस आ रही हैं, डे बाय डे बिजनेस पोर्टफोलियो चेंज हो रहे हैं। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन देखें तो इनफ्लेक्सिबल थी, अब फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। जॉब फोकस्ड थी, अब स्किल फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गई हैं। हर काम में एक्सपर्ट्स नज़र आते हैं आपको। वर्क इज डिफाइंड बाय जॉब पोजीशंस। अब क्या हो रहा है जी, वर्क इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ टास्क टू बी डन। हर टास्क के लिए अलग डिपार्टमेंट। इंडिविजुअल ओरिएंटेड, अब टीम ओरिएंटेशन आ गई है। इंडिविजुअल कोई हैसियत नहीं है। एक आदमी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर वो टीम वर्क में परफॉर्म नहीं कर सकता, ये कैन नॉट एग्जिस्ट। परमानेंट जॉब्स होती थी पहले, अब क्या हो गया जी, टेम्परेरी जॉब्स हैं। कमांड ओरिएंटेड थे, ऑर्डर प्लेस होता था, अब इन्वॉल्वमेंट ओरिएंटेड है। मैनेजर ऑलवेज मेक डिसीजंस, उस वक्त मैनेजर सिर्फ डिसीजन लेता था, अब एम्प्लॉइज़ की पार्टिसिपेशन आ गई है डिसीजन मेकिंग के अंदर, उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। रूल ओरिएंटेड, अब कस्टमर ओरिएंटेड। रिलेटिवली होमोजीनियस वर्कफोर्स थी, सिर्फ एक ही इलाके के लोग, एक ही कल्चर के लोग, एक ही जनरेशन, एक ही जेंडर काम कर रही होती थी। अब डाइवर्स वर्कफोर्स नज़र आती है हमें विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, मेल फीमेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर के लोग, डिफरेंट रिलीजन के लोग, डिफरेंट टाइप ऑफ नेशनलिटी के लोग हमें एक ही जगह पे इकट्ठे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दैट इज़ डाइवर्स वर्कफोर्स। हायरार्किकल रिलेशनशिप होता था, अब वर्क डेज हैव
नो बाउंड्रीज। वर्क डेज डिफाइंड एट 9 to 5 उस वक्त होता था, फिक्स टाइम है। अब कोई बाउंड्री नहीं है, जब कोई दिल चाहता है घर बैठ के भी अपना ऑफिस का काम कंप्लीट कर लेता है। 24 आवर्स आप ऑनलाइन है। हायरार्किकल रिलेशनशिप, लेटरल एंड नेटवर्क रिलेशनशिप अब आजकल आ गया। उस वक्त होता था जनाब जूनियर सीनियर का आपस में रिलेशनशिप इतना ही है कि वो बॉस है और वो उसका सबऑर्डिनेट है। बट नाउअडेज देयर इज अ लेटरल एंड नेटवर्क रिलेशनशिप। वर्क एट ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी ड्यूरिंग स्पेसिफिक आवर्स, अब वर्क एनीवेयर एंड एनी टाइम। अब कोई उसकी लिमिट्स नहीं है कि कौन किस तरीके से कहाँ पे काम कर रहा है। यूनिवर्सल नीड फॉर मैनेजमेंट, अब इसका मकसद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट तो हमें ज़रूरत है, हर जगह पे ही नीड मैनेजमेंट हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट साइजेस की हो, कहीं भी हो, जैसे स्मॉल हो या लार्ज हो, मैनेजमेंट इज़ नीडेड। ऑल ऑर्गेनाइजेशन एरियाज, हाँ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, HR है या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वहाँ पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती ही है। अब ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हाँ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई NGO है। इसी तरह ऑल ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स हैं, लोअर लेवल पे या हाई लेवल पे, टॉप लेवल पे भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। तो यूनिवर्सल नीड है मैनेजमेंट की। लास्ट पे है जी रिवॉर्ड्स एंड चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ मैनेजर। अगर एक मैनेजर जो है वो बेशुमार चैलेंजेस को फेस कर रहा है तो दैट मीन उसको बेशुमार रिवॉर्ड्स भी अवेल कर रहा है। क्रिएट अ वर्क एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स कैन वर्क टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी, ये एक रिवॉर्ड है कि वो ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करे जहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो उसके टीम मेंबर्स हैं, वो हैप्पी मूड नज़र आए उनका। हैव अपॉर्चुनिटीज़ टू थिंक क्रिएटिवली एंड यूज़ इमेजिनेशन, उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हो कि वो क्रिएटिव अपने आइडियाज़ लेकर आएँ। सो दैट इनोवेशन हेल्प्स अदर्स फाइंड मीनिंग एंड फुलफिलमेंट इन वर्क, दूसरों की हेल्प सो दैट काम जल्दी कंप्लीट हो सके। सपोर्ट कोच एंड नर्चर अदर्स, सपोर्ट कोच एंड दूसरों की कोचिंग करना, मेंटोरिंग करना। वर्क विद द वैरायटी ऑफ पीपल, एक जैसी वर्क फोर्स नहीं है, डाइवर्सिटी है, तो मुख्तलिफ लोगों के साथ काम करना। प्ले अ रोल इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स, इस तरह रिसीव रिकॉग्निशन एंड स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी। प्ले अ रोल इन इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स, receive appropriate compensation in form of salary, bonus and stock options, shares, bonus के अलावा भी। good managers are needed by organizations, तो ये एक रिवॉर्ड्स हैं जो कि कंपनी मैनेजर्स को दे रही है, लेकिन साथ साथ चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। एक मैनेजर को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए डू हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। Many have duties that are more clerical than managerial, बेशुमार ऑफिस वर्क करना पड़ रहा है। have a deal with a variety of personalities, बेशुमार लोगों से वास्ता पड़ता है। often have to make do with limited resources, बेशुमार डिसीजंस लेने पड़ते हैं जब रिसोर्सेज जो हैं बड़े शॉर्ट होते हैं, लिमिटेड होते हैं। मोटिवेट वर्कर्स इन क्वेटिक एंड अनसर्टेन सिचुएशन, एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट रखना, जैसी भी सूरत हाल हो, अनसर्टेनिटी हो, क्वेटिक कोई भी हो, तो एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट रखना, वर्कर्स को मोटिवेट रखना, ये भी एक चैलेंज होता है मैनेजर के लिए। सक्सेसफुली ब्लेंड नॉलेज, स्किल्स, एम्बिशंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ अ डाइवर्स वर्क ग्रुप। इसी तरह सक्सेस डिपेंड्स ऑन अदर वर्क परफॉर्मेंस, ये भी एक चैलेंज है कि दूसरे लोग अगर मेहनत करेंगे, एफर्ट्स करेंगे तो श्योरली कंपनी की परफॉर्मेंस नज़र आएगी, अल्टीमेटली मैनेजर भी उससे रिवार्ड हासिल करेगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। फॉर द नेक्स्ट लेक्चर